Hello everyone. Today we will discuss about the cell cycle and cell division of class 11. Okay. Now this is first MCQ. Meiosis in diploid organism result in A. Production of gametes, reduction in the number of chromosomes, introduction of variations, all of the above. तो what happened कि meiosis in diploid organism, तो diploid organism में क्या result होता है ड्यू टू द meiosis? तो क्या होगा? What is the answer? The answer is all of the above. क्योंकि meiosis क्या ड्यूरिंग meiosis प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स होता है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन सब होता है. तो इट मीन्स कि जो meiosis एंड डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ द अबव. दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट, एट विच स्टेज ऑफ meiosis डज द जेनेटिक constitutions of gamete is finally decided? Okay, which stage of meiosis की which stage the genetic constitution of gametes is finally decided? A. Metaphase, B. Anaphase second या C. Metaphase second, Anaphase first. तो what is the answer? What is the तो answer is D. At the Anaphase first. तो Anaphase first में जो meiosis की जो gametes की जो constitutions हैं वो क्या हो जाता है? फाइनली डिसाइडेड हो जाती है. नाउ थर्ड, meiosis अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग. ओके, तो meiosis कब अकर होता है? ए. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सी. बोथ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या नन ऑफ दिस. तो meiosis अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग. ऑर्गेनिज्म में किस टाइम होता है? तो कब अकर होगा? सेक्सुअल reproduction. तो meiosis occur in organism during sexual reproduction. Now next, during anaphase first of meiosis, homologous chromosomes separate, non-homologous chromosomes separate, sister chromated chromosomes separate, non-sister chromated chromosomes are separate. तो what happened during anaphase first? एनाफेज फर्स्ट ऑफ meiosis क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट. तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होंगे? सेपरेट. तो ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ meiosis होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेट. नाउ नेक्स्ट, माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय. ओके, माइटोसिस क्या मतलब है? रिडक्शनल डिवीजन, इक्वल डिवीजन, बोथ रिडक्शन एंड इक्वल डिवीजन या पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइटोसिस? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइटोसिस? बी. इक्वल डिवीजन. क्योंकि इसमें क्या होते हैं? सेम जो क्रोमोसोम्स हैं टू इक्वल्स डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं. 6. A bivalent of meiosis first consists of. Bivalent of meiosis first, okay, consists of A. 2 chromatids and 1 centromere, 2 chromatids and 2 centromeres, 4 chromatids and 2 centromeres, 4 chromatids and 4 centromeres. तो A bivalent of meiosis first consists of. Bivalent of meiosis first. तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी. इट मीन्स कि 4 chromatids एंड 2 centromeres अकर होंगे कि जब व्हेन वी टॉक अबाउट meiosis फर्स्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट, सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट. ओके, तो क्या होगा? ए. सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट. तो ए. G, B. G2, C. G0 फेस या D. S phase. तो what is the answer? Answer C. It means G0 phase. तो these cells that do not divide further exit G phase to enter an inactive stage is called quiescent stage. मतलब this is the G0 stage of the cycle. G0 stage of cell denotes exit of cell from cell
साइकिल। इट मीन्स कि ये जो टाइम पीरियड है, 2 सेल्स के स्टार्ट होने के बीच का जो टाइम पीरियड है, तो इट मीन्स कि द स्टेज ऑफ सेल डिनोट्स एग्जिट ऑफ सेल फ्रॉम सेल साइकिल। ड्यूरिंग G0 स्टेज ऑफ सेल साइकिल, सेल डिसाइड्स टू अंडरगो डिफरेंशिएशन। Cell in G0 stage remains metabolically active but no longer proliferates unless called on the do so depending on the required of the organism. Okay, तो जो G0 स्टेज है उसमें बेसिकली क्या होगा, एग्जिट हो जाती है फ्रॉम सेल साइकिल से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the event listed below is not observed during mitosis? तो A, chromatin condensation, B, movement of centrioles to opposite poles, C, appearance of chromosome with 2 chromatids joined together at the centromere, D, crossing over. तो which of the event listed below is not observed during mitosis? माइटोसिस के टाइम में क्या नहीं होता, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टू अपोजिट पोल्स होगा, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स विद 2 क्रोमेटिड्स जॉइंड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, ये भी होगा। क्या नहीं होगा, द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, ड्यूरिंग मियोसिस, माइटोसिस में नहीं होगा। तो क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकाइटिन स्टेज। कब होगा, मियोसिस फर्स्ट की पैकाइटिन स्टेज में होता है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम medicated process and the enzyme involved is called recombinase. कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, दिस एंजाइम इज नोन एज द recombinase. Crossing over leads to recombination to genetic material on the 2 chromosome. Exchange of parental and maternal chromosome material during पैकाइटिन is called क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें क्या होता है, पेरेंटल और मैटरनल क्रोमोसोम्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। नाउ आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। मियोसिस के लिए क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, नाउ नेक्स्ट, 4 हिप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। 4 हिप्लॉइड सेल्स बनती है। एट द एंड ऑफ मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ। 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेट अकर्स। तो व्हाट इज द, क्या क्वेश्चन था हमारा कि दिस इज द आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। तो मियोसिस के अंदर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। 4 हिप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, this is also right statement. At the end of meiosis number of chromosome are reduced to half हो जाते हैं। Now 2 cycles of DNA replicate अगर, ये this is the wrong statement। तो what is the answer, the answer D is the right answer, क्योंकि उसमें meiosis but single cell डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड तो होता है, बट सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। नाउ नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। ओके, तो G1 फेज में विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द G1 स्टेज, सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है। डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट। जो डीएनए है सेल का वो रेप्लिकेट नहीं करता। इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, सेल स्टॉप्स ग्रोइंग। तो व्हाट इज द, जस्ट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। तो G1 फेज में क्या होगा, सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, G1 फेज में वो रेप्लिकेट नहीं करता। इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेल्स स्टॉप ग्रोइंग, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो व्हाट इज द राइट स्टेटमेंट, द राइट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट इज डीएनए इन द सेल डज नॉट
रेप्लिकेट इन जीवन फेज। जीवन फेज में सेल रेप्लिकेट नहीं करता। नाउ दीज आर MCQs कंप्लीट। MCQ अब हम करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। Between a prokaryote and eukaryote, which cell has a shorter cell division time? Okay, when we talk about the prokaryote and eukaryote, so which cell has a shorter cell division time? So prokaryotic cell has shorter cell division time than eukaryotic cell. Okay, तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल डिवीजन है वो ज़्यादा टाइम लेता है, बट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर सेल डिवीजन कम टाइम लेता है। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। दीज सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। और इन बैक्टीरिया ई कोलाई की हम बात करें तो सेल साइकिल ऑफ 20 मिनट्स। तो ई कोलाई के अंदर सेल साइकिल कितना है? 20 मिनट्स का। और ह्यूमन की अगर हम बात करें तो उसमें जो सेल डिवीजन होता है वंस इज अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। तो उसमें कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स का, जबकि ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर कितना है? 20 मिनट्स का ही है। विच ऑफ द फेज ऑफ सेल साइकिल इज ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? विच ऑफ द फेज ऑफ सेल साइकिल इज ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? कौन सा होता है? दिस इज द इंटरफेज। कि जो सेल साइकिल के अंदर इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सब है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड कौन लेता है? लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कौन सा होता है? इंटरफेज। नेम अ स्टेन कॉमनली यूज्ड टू कलर क्रोमोसोम। ओके, तो हम कौन सा स्टेन बेसिकली यूज में लेते हैं फॉर क्रोमोसोम? दिस इज द एसिटोकार्मिन। ओके, विच टिश्यू ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट meiosis? Okay, which tissue of animals and plants exhibit meiosis? meiosis animals और plants में तो gonads, testes and ovary in animals and sporangium in plants। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या आ जाएगा? टेस्टिस एंड ओवरी, जहां पर क्या होता है? मियोसिस, एग्जिबिट मियोसिस। और व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लांट्स, तो प्लांट्स में कहाँ आएगा? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होगी, एग्जिबिट वहां पर होगी मियोसिस। ओके, एंड एनिमल्स के अंदर टेस्टिस एंड ओवरी। Okay, given that the average duplication time of E. coli is 20 minutes, how much time will 2 E. coli cells take to become 32 cells? Okay, this is a question कि given that the average duplication time of E. coli is 20 minutes. अभी हमने जस्ट ऊपर ये देखा था कि E. coli के अंदर कितना होता है? 20 मिनट्स का होता है। ठीक है, तो how much time will 2 E. coli cells take to become 32 cells? कितने सेल्स ले रहे हैं हम? 2 सेल्स ऑफ E. coli। 2 सेल्स हमने E. coli के लिए, वो कितने टाइम के अंदर 32 सेल्स बनाएंगे? कितने टाइम डिवाइड होगी जो 32 सेल्स बनेगी? तो जब 1 डिवाइड होगी तो कितनी बनेगी? 4 होगी तो 8 16 और 16 कितनी होगी? 32। तो कितनी बार डिवीजन कितने हुए? 1 2 3 4 डिवीजन हुए और कितने सेल्स बने हमारे? 32 सेल्स बने। तो जो 32 सेल्स 2 E. coli सेल्स टेक 4 साइकिल्स। कितने साइकिल लेगी? 4 साइकिल्स। सो टोटल टाइम, अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल टाइम। तो हमारे 1 साइकिल का टाइम पीरियड कितना है? 20। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि टाइम पीरियड कितना, टाइम ड्यूरेशन है। तो 1 साइकिल हमारी कितना टाइम लेती है? 20। ठीक है, और हमारे कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं? 1 2 3 4 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो 4 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा? 80 मिनट्स। तो कितना टाइम पीरियड लेगी? 80 मिनट्स का। कि जो E. coli है वो एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम पीरियड लेती है? 20 मिनट्स का लेती है। अगर हम 2 सेल्स की बात कर रहे हैं तो 2 सेल्स 32 सेल्स बनाने में कितना टाइम पीरियड लेगी? तो जब 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितने साइकिल्स आए? 1 2 3
4 साइकिल्स आए, तो 1 कितने में लेता है? 20 में, तो 4 into 20 80 minutes. Which part of the human body should one use to demonstrate stage in mitosis? Okay, which part of the human body should one use to demonstrate stage of mitosis? क्या लेते हैं हम? नेल बेस और एनी सोमेटिक सेल्स, कोई भी ले सकते हैं, या तो हम नेल ले सकते हैं या फिर हम कोई भी सोमेटिक सेल्स ले सकते हैं जो डिप्लॉइड सेल है. ये दोनों कैसी है हमारी? डिप्लॉइड सेल्स है. What attributes does a chromatid require to be classified as a chromosome? Okay, what attribute क्या होना चाहिए जो chromatid required to be classified as a chromosome, जो वो 2 chromosomes में classified होंगे, तो क्या होना चाहिए? Centromere. It is very important. Centromere होगा तभी वो 2 chromosomes में classified होंगे. The diagram shows a bivalent at prophase 1 of meiosis. Which of the 4 chromatids can cross over? This is the diagram. तो इसके अंदर हमें क्या बताना है कि कितने show a bivalent at prophase first. वो किसका था? prophase first of meiosis. Which of the 4 chromatids can cross over? इसमें से कितने क्रॉस ओवर होंगे? तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम. जो सिस्टर क्रोमेटिड है होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो ही क्या हो रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर हो रही है. ये देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है. ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, दिस इज द 1 क्रोमोसोम एंड दिस इज द अनदर क्रोमोसोम. ये सेकेंड है, ये इस तरीके से थर्ड फोर्थ यहाँ पे इस तरीके से कंबाइंड हो रहे हैं. तो बेसिकली जो क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर अकर हो रहा है वो इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर अकर हो रहा है कि यहाँ पे ये क्रोमोसोम और इसके ये सिस्टर क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर अकर हो रहा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इफ अ टिश्यू has a given time 1024 cells, okay, how many cycles of mitosis had the original parental single cell undergone? okay, ये जस्ट ऑपोजिट है. पहले वाले हमने क्या फाइंड आउट किया था? टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था. अब इसमें हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड तो गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइकिल्स फाइंड आउट करने हैं. तो हमारे पास क्या है? इफ अ टिश्यू हैज एट अ गिवन टाइम 1024 सेल्स. गिवन टाइम पीरियड में कितना सेल्स है इसके पास? 1024 सेल्स. हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ माइटोसिस हैड द ओरिजिनल पेरेंटल सिंगल सेल अंडरगो? ओके, तो हमारे पास कितने सेल्स हैं? 1024 और हमें क्या फाइंड आउट करना है? n. दिस इज द 2 सेल्स का ही फाइंड आउट करते हैं और दिस इज द n. तो ये जो n डिनोट करेगा, दिस इज अ नंबर ऑफ साइकिल्स. n क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ साइकिल्स. ओके, तो ये जो नंबर ऑफ साइकिल्स डिनोट कर रहा है, तो कितने हो गए हमारे? 1024. ओके, तो अगर हम इसकी 2 की पावर 10 है तो इट मीन्स n हमारा कितना हो गया? n इक्वल्स टू 10. ओके, तो व्हाट इज द आंसर? तो जो 10 साइकिल्स ऑफ माइटोसिस आर देयर इन द ओरिजिनल पेरेंटल सिंगल सेल. ओके, तो जो 10 साइकिल्स है उसके अंदर कितने होंगे माइटोसिस? देयर आर ओरिजिनल पेरेंटल सिंगल सेल. कितने रखेंगे हम? 10 साइकिल्स के अंदर ये कंप्लीट होगा. हम 1 बाय 1 रख के देख लेंगे. तो उसके अंदर जब हम इसमें देख रहे हैं कि जब हमारे पास 4 साइकिल्स के अंदर 32 बन रहा है, तो आगे जब हम उसको और कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है? ये 1024 n इक्वल्स टू 10. नाउ एंड अनदर हैज 1200 pollen grains. How many pollen mother cells PMC must have been there to produce them? 4 pollen grains are produced by 1 PMC. 1200 pollen grains are produced by 1200 by 4. तो कितना आ जाएगा हमारा? 300 PMC.
नाउ एट व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल डज डीएनए सिंथेसाइज टेक प्लेस? डीएनए सिंथेसाइज कहां पर होता है? एस फेज. दिस इज द एस फेज, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? इंटरफेज. It is said that the one cycle of cell division in human cells, eukaryotic cells, takes 24 hours. Which phase of the cell cycle do you think occupy the maximum part of the cell cycle? It is a significant of to note that in the 24 hours average duration of cell cycle of human cells, cell division proper lasts for only about an hour. The interphase lasts more than 95% of the duration of the cell. So this is the answer. It is observed that heart cells do not exhibit cell division. Such cells do not divide further and exit phase to enter an inactive stage called a cell cycle. Fill in the blanks. So it is observed that heart cells do not exhibit cell division. Such cells do not divide further at exit G1 phase to enter an inactive stage called G0 of the cell cycle. कौन सी आ जाएगी? G0 phase of the cell cycle. देखो, in which phase of meiosis are the following formed? Choose the answer from in point given below. Okay, now first spawn synaptominal complex. synaptominal complex कहाँ बनेगा? जाइगोटीन. कहाँ बनेगा? जाइगोटीन के अंदर. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहाँ बनेंगे? पैकाइटिन स्टेज के अंदर. ओके, नाउ अपीयरेंस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स. तो ये कहाँ बनेगा? पैकाइटिन स्टेज के अंदर. ये भी कहाँ बनेगा? पैकाइटिन स्टेज के अंदर. तो हमारा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो भी कहाँ बने? पैकाइटिन स्टेज के अंदर. ओके, टर्मिनेशन ऑफ क्याज्मेटा. टर्मिनेशन ऑफ क्याज्मेटा कहाँ होगा? डाइकाइनेसिस के अंदर होगा. और इंटरकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज बिफोर मियोसिस सेकेंड. और फॉर्मेशन ऑफ डेड ऑफ सेल्स तो कहाँ होगा? टीलोफेज फर्स्ट एंड आफ्टर मियोसिस. ओके, नेक्स्ट सेशन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.